Good morning, class 10. How are you all? Hi, all of you. Don't shout. Don't shout. So, yesterday we are talking about the power sharing. We will do little bit recap. What we have studied yesterday, we are talking about the conflict between the two countries, that is the Belgium and Sri Lanka. They are fighting not with each other, they are fighting for their community, for their power, or we can say the power sharing among the communities. In the one country, there is a majority of the one community, and there is a demand and the needs of the other countries are also not fulfilling. Right? So we are talking about this much. So today we will continue this chapter due to some technical issue of yesterday. Right? Our chapter is lagging. So we will try to complete it today. Okay? We are unable to complete our yesterday's session properly. So I will continue that chapter. This we have done. Struggle, engineering, problem of societies we have done. We are talking about this. So we will do little bit recap of this one again. Okay. We are talking about the Belgium. That total population is around 1 crore. Here, the people who are speaking Dutch, 59%. They are called Flemish. They are called 1% German speaking. 40% French speaking. They are called Walloon. They are called Walloon. Why I'm asking you this or why I'm saying you this Flemish or the Walloon? One mark answer. One mark MCQs are came in your exam. Yesterday I saw your board paper in which the questions are related to both these ones. One mark MCQ. In the exams you got around 15 to 18 MCQs. Okay, and in this from this chapter is also MCQs are coming. Okay. Now, as you know, the capital of Belgium is Brussels. 80% are French speakers and the 20% are Dutch. Clear? Till here any problem? No. Come to the Sri Lanka. Total population is around 2 crores. 70%, 74% people speak Sinhala. They have a majority. They have a majority. 18% people are Tamil speakers, which include 13% Sri Lankan speakers and the 5% Indian speakers. Indian Tamil speakers, you know the 5% Indian Tamil speakers, the persons who are living there here in India, but they are right now residing in Sri Lanka and speaking Tamil. And the 7% are the Christians who speaks both Tamil and Sinhala. 7% are Christians who speaks both Tamil and Sinhala. Got it? Any doubt? Now, Sri Lankan, Sri Lanka got independence in 1948. It democratically elected the government sought to secure dominance for the Sinhala majority. अब क्या हुआ यहाँ पे? जब सिन्हाला के पास मेजोरिटी हो गई तो इन्होंने क्या किया? What they have started? They have started the suppressing or just demoralizing to whom? To the Tamil majority. वो किसी भी तरह से उनकी नीड्स को, उनकी डिमांड्स को फुलफिल होने नहीं दे रहे थे. कौन? सिन्हालास. किनकी? तमिल की. और ये तमिल दोनों थे 18% वाले. गॉट इट? ये आपने देखा, कल हमने पढ़ा था कि ये ब्लॉक्स जो हैं ये किसके हैं? तमिल माइनॉरिटीज के. और ये जो मेजोरिटी वाला पिलर है वो किसका है? सिन्हालास का है. नाउ द व्हाट द सिन्हालास आर डिमांडिंग. सिन्हालास ने एक प्रोविजन बनाया 1956 में. क्या प्रोविजन बनाया और क्या बनाया? उसके अंदर क्या लिखा कि डिक्लेयर सिन्हाला लैंग्वेज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका. अगेन द वन मार्क क्वेश्चन. Did you give the yesterday's reply in the comment box? No, na? Why? I will cut your marks, no issues. To whom I am giving the questions? For me? All the questions are for me only. Yeah, it's for you. I think it's for you. So give reply in the comment box whatever question I am asking. Got it? मुझे बेनिफिट नहीं है बेटा, आपको बेनिफिट है. Okay. The first is the act was passed in 1956. What they want? They want the official language as Sinhala. Clear?
So what the question arises? When was the act was passed? And what the act says? Declare the Sinhala as the official language Sri Lanka. Now, what they have, what they were demanding to the government. अब इन्होंने गवर्नमेंट के पास डिमांड भी रखी, मेजोरिटी है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट के पास डिमांड रखेंगे। तो हमने क्या डिमांड रखी, हमसे मतलब हो गया यहाँ पे सिन्हालाज। सिन्हालाज ने क्या डिमांड रखी, क्या मांगा कि एक तो हमें क्या दो आप, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दो हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दो, और हमें क्या प्रोवाइड करो, गवर्नमेंट जॉब। टू डिमांड्स रखी, क्या रखी, admission in university for our students. Second one, the government jobs. Remember both these 2 points. They are very important. Clear? Now, what happened? हाँ बेटा, पहले थे, ऐसा नहीं है, लेकिन एक जो ऑफिशियली आप हो जाते हो, आपको जब एक टैग मिल जाता है, तो आपके पास एक पावर जो होती है वो थोड़ी सी एनहेंस हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अभी वेल एजुकेट नहीं थे या पढ़ नहीं रहे थे, पढ़ तो रहे थे, लेकिन एक कहते हैं ना, एक टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो जाना, श्रीलंकन इसका सिन्हालास का, जो सिन्हाला स्पीकिंग है भाई, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट क्या अराइजेस था, तमिल्स के बीच में अराइजेस था, तमिल्स और सिन्हालास। ये कह रहे थे कि हमारी लैंग्वेज को ऑफिशियल करो, तमिल्स कह रहे थे हमारी लैंग्वेज को ऑफिशियल करो। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाती है तो यूनिवर्सिटीज में भी क्या, किसको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी, सिन्हाला लैंग्वेजेस को। तो उन्होंने क्या डिमांड करी कि यूनिवर्सिटीज में जब ऑफिशियल सिन्हाला लैंग्वेज हो जाएगी तो वहां पे हमारे स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाए, हमें गवर्नमेंट जॉब भी प्रोवाइड कराई जाए। भाई एक पढ़ रहा भारी भारी हो गया ना, अब ये तो समझो, इसके पास पावर होल्डिंग ज्यादा हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं। और जो माइनॉरिटी थे, जो तमिलियंस थे, उनको ये सब राइट्स नहीं मिले, उनको ये सब नीड्स, उनकी जो डिमांड्स थी वो गवर्नमेंट ने फुलफिल नहीं करी। तो क्या अराइज हो गया, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा तो वो किसके रूप में आ जाएगा, एक सिविल वॉर के बीच में। लोग कहाँ पर आ जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे लड़ने के। जब उनकी डिमांड्स नीड फुलफिल नहीं होगी तो क्या होगा, लोग कहाँ आएंगे, लोग कहाँ आ जाएंगे, रोड पे। Now, new constitution drafted to protect and foster Buddhism exclusively. अब उन्होंने क्या कहा, क्या बनाओ हमारे लिए, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, सनहालास के लिए न्यू टेम्पल्स बनाओ। क्यों, क्योंकि सनहालास किसको प्रमोट कर रहे थे, टू whom they are protecting बुद्धिज्म। किसको ज्यादा प्रमोट कर रहे थे, बुद्धिज्म। तो हमारे लिए नए नए टेम्पल्स बनवाओ बुद्धिज्म के, हमें प्रमोट करो। आपको याद हो सेक्युलरिज्म वाला चैप्टर, जिसमें क्या क्या कह रहे थे कि स्टेट और रिलीजन डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि कोई भी स्टेट अपने रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता। यहाँ तो ऑफिशियली कहा जा रहा है कि हमारे रिलीजन को प्रमोट करो आप। तो क्या यहाँ सेक्युलरिज्म है, नहीं है, ये तो वन साइड पार्टी चल रही है यहाँ पे, कि जो हम करेंगे वही होगा, मेजोरिटी चल रही है, वन साइड पार्टी हो गई, विन विन मेजोरिटी जिसको हम कहते हैं। क्लियर, ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। कोडिंग पावर शैटर्स ऑफ फाउंडेशन। अब क्या हुआ, जब इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगी तो हमारा जो बेसिक फाउंडेशन है, हमारा जो पिलर है, वो इतर बितर बिखर जाएगा। जब सिविल वॉर होता है तो लोगों का ही नहीं, प्रॉपर्टी का भी नहीं, बल्कि हमारे गवर्नमेंट की धज्जियां उड़ जाती हैं, गवर्नमेंट खत्म होने लगती है। गवर्नमेंट किसके लिए बोलेगी, किसकी तरफ बोलेगी और किसके लिए बोलेगी, समझ रहे हो आप बात। फाउंडेशन क्या होगा, टूट के बिखर जाए। ये पिलर दिखा रहा है, क्या शो कर रहा है ये पिलर, कि हमारा फाउंडेशन बिखर गया। Government measures systematically alienated the Sri Lankan Tamils, denying them equal political rights.
क्या श्रीलंकन तमिल्स को इक्वल पॉलिटिकल राइट मिला? नहीं मिला। क्या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिली? The refusal to grant regional autonomy to Tamil populated provinces led to demand for an independent state Tamil Elam. The distress transformed into the devastating civil war that lasted until 2009. लोगों में क्या पैदा हो गया? डर की भावना पैदा हो गई। लोगों में आपस में क्या खत्म हो गया? ट्रस्ट खत्म हो गया। ऑफ कोर्स होगा। एक मेजोरिटी वाला जब माइनॉरिटी को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगा तो क्या होगा? ट्रस्ट खत्म होता चला जाएगा। कौन किसके ऊपर ट्रस्ट करेगा? कोई नहीं करेगा। और वो वॉर सिविल वॉर के अंदर कन्वर्टेड। क्लियर है? जब पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे, फ्रीडम नहीं मिल रही, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, अगर यही चीज अगर हम क्लास में करना स्टार्ट कर दें टीचर्स आप लोगों के साथ, तो क्या होगा? आप लोगों में डिस्ट्रेस पैदा नहीं होगा कि हम मैम के ऊपर फेथ नहीं कर सकते, मैम हमारी बात नहीं सुनेगी, हमें इक्वल राइट्स नहीं दिए जाएंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, मुझे भी बोलना आता है, मुझे भी चांस दो। ऐसा होगा कि नहीं होगा? एग्जैक्टली वो यहाँ पर यही हो रहा है। श्रीलंकन तमिल्स और सन्हालास के बीच में इसी बीच की लड़ाई है कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। भाई अगर हमारी माइनॉरिटी है, अगर हमारी पॉपुलेशन कम है, तो इसमें तमिलियंस का तो कोई आई डोंट थिंक सो कि उनका कोई फॉल्ट है इसके अंदर। आ गई बात समझ में? शैल वी मूव? एनी डाउट? आगे बढ़े। Belgium leader recognized that the national unity was only possible by respecting the interests of the different communities. Now we will talk about the Belgium. Is it visible? Now we will talk about the Belgium. अब बेल्जियम के लीडर्स जो भी थे उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग हैं इसमें आपस में एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? रेस्पेक्ट नहीं है, यूनिटी नहीं है। इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग मेजॉरिटी रूल, they amended their constitution 4 times between 1970 and 1993 to construct an innovative mutually acceptable power sharing arrangement. यहाँ पर हम कहें कि कुछ सी लैंग्वेज को लेके लड़ाई नहीं थी, लड़ाई किस चीज को लेके थी? यूनिटी को लेके। किस चीज को लड़ाई थी यहाँ पे? यूनिटी को लेके। हम कहें अकोमोडेशन को लेके। अब बात आती है मैम, अकोमोडेशन से क्या मतलब है? अकोमोडेशन से क्या मतलब है? हमने श्रीलंकन वाला पढ़ा, वहां तो मेजोरिटी को लेके होगा तो हमने मेजोरिटिज्म बोल दिया वहां पे। तो अब यहाँ पर किस चीज को लेके लड़ाई थी? अकोमोडेशन को लेके लड़ाई थी कि हम कैसे रहें, हम कैसे रहें। मतलब लोगों में आपस में यूनिटी नहीं थी, नेबर नेबर के साथ डिस्ट्रस्ट वाली फीलिंग थी, कम्युनिटी कम्युनिटी में आपस में यूनिटी नहीं थी। तो क्या ये साथ में रहना पसंद करेंगे? क्यों यहाँ पर इतने बार चेंजेस हो गए? 4 टाइम्स चेंज होना। अभी तो देखो 1970 से लेके 93 तक 23 इयर्स में 4 टाइम्स अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होना बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं होते, बट देयर इज अ चेंजेस अराउंड 23 टाइम्स, 70 to 93, 23 times. So within a 23 years, 4 times amendments were made in Belgium because of only making the people in unity. They all are not in unity. They are not ready to respect each other. उनको एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं था। पड़ोस में आग लग रही होगी, कौन जाएगा इन्फॉर्म करने, और मैं क्यों जाऊं बचाने? आ रही बात समझ में? गॉट इट? The resulting government structure is complex but highly stable, ensuring no single community can make decision unilaterally. बेल्जियम में कहा गया कि एक सिंगल कम्युनिटी को हम मेजॉरिटी डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक सिंगल कम्युनिटी सबके लिए डिसीजन नहीं ले सकती। हाँ, क्यों नहीं ले सकती? क्यों नहीं ले सकती? वो तो बायस्ड हो जाएगी। जिस कम्युनिटी में मेजॉरिटी होगी, अगर उसको आप खड़ा कर दोगे कि आज आप लीडर बन गए हो और अब आप डिसीजन बनाओ सबके लिए, तो वो सबसे पहले किसके फेवर के लिए सोचेगा? खुद के लिए, खुद की कम्युनिटी के लिए सोचेगा। ऑफ कोर्स, ये तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है। इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि इफ आई एम ए लीडर
and if my community is in winning position or the majority position, so first I will take the decision regarding their future only, for their safety point of view. I will safeguard their interest only. Got my point what I'm saying? कोई भी हो, तो उन्होंने क्या कहा, कोई भी सिंगल कम्युनिटी का लीडर विन विन पोजीशन में आके यूनिलेटरी मतलब सबके लिए एक साथ एक डिसीजन नहीं ले सकता, वो क्या हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगा। वो सिर्फ खुद की सोचेगा, सबकी नहीं सोचेगा। गॉट माय पॉइंट? क्लियर? नाउ central government equal number of Dutch and the French speaking ministers, special laws require majority support from both linguistic groups. Something is lacking there. Yes, in the Belgium is also, there are the two groups, one is speaking Dutch and one is speaking French. Okay, these both communities are living together in the Belgium and they are fighting for their unity. Got it? Now, what the central government is saying, equal number of Dutch and the French speaking ministers, special laws require majority support from both linguistic groups. अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है हमारी, कि भाई दोनों जो हम कहें कि दोनों जो कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो डच का हो चाहे वो फ्रेंच का हो, दोनों के मिनिस्टर इक्वल नंबर में होनी चाहिए गवर्नमेंट में। मतलब हम मान लें कि सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे पास कितनी सीट्स हैं, 545 245, हाउ मेनी सीट्स वी हैव, 245। भाई इस 245 में हम चलो ले लेते हैं 240 सीट्स ले लेते हैं, कि भाई इसमें 120 किसके हो, डच के हो, और 120 किसके हो, फ्रेंच के हो। इनके लिए क्या बनाया जाएगा, एक स्पेशल लॉ बनाया जाएगा जो दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप को सपोर्ट करे। एक कॉमन लॉ बनाया जाएगा जो दोनों के ऊपर क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। मतलब इस रो में मेरे पास 20 बैठे हैं, इस रो में मेरे पास 20 बैठे हैं, तो मैं दोनों को एक इक्वल लॉ दूंगी जिससे दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा, दोनों के पास मेजोरिटी होगी वोट देने की, डिसीजन लेने की। आ रही बात समझ में? किसने कराई ये, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि दोनों कम्युनिटी के लोग इक्वल इक्वल होने चाहिए, दोनों के पास डिसीजन पावर इक्वल होनी चाहिए। जो भी लॉ बन रहे हैं ये ऐसा नहीं हो कि आप मेजोरिटी को ज्यादा फेवरेबल कर दो और माइनॉरिटी को नहीं करो, ऐसा नहीं होगा, नहीं तो वो डिसीजन क्या हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगा। फिर इक्वल की बात कहां से आई, मत देते फिर इनको वोटिंग राइट, इक्वल सीट्स नहीं देते फिर। क्लियर है? स्टेट गवर्नमेंट क्या कहता है, रीजनल गवर्नमेंट्स होल्ड सिग्निफिकेंट पावर एंड आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसने क्या कहा कि भाई मेरे पास दो कम्युनिटी के लोग हैं, एक तो डच है एक फ्रेंच है, ठीक है, सारी पावर मैं किसको देता हूँ, स्टेट को देता हूँ। एक स्पेशल पावर दूंगा जिससे वो दोनों कम्युनिटी के दोनों रीजनल के लोगों को होल्ड करेगा, कि भाई दोनों एक एक मेजोरिटी में है एक माइनॉरिटी में है, तो कैसे होल्ड करना है उनको, कैसे अपने कंट्रोल में रखना है, वो कौन देखेगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, पावर शेयर हो रही है, समझ रहे हो, पावर शेयर हो गई, सेंट्रल से कहाँ आ गई, स्टेट पे आ गई। अब स्टेट से कहाँ चली जाएगी, कम्युनिटी पे चली जाएगी। आ रही है बात समझ में, यहाँ पावर शेयरिंग दिख रही है आपको। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या कहती है, इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द लैंग्वेज ग्रुप्स टू गवर्न कल्चर एजुकेशन एंड लिंग्विस्टिक इशू। भाई दोनों कम्युनिटी में हम क्या बना देते हैं, इलेक्शंस करवा देते हैं, इलेक्शंस करवा के एक लीडर को अपॉइंट कर लेते हैं। हर जो लीडर होगा वो दोनों अपनी अपनी कम्युनिटी को रेगुलेट करेगा, जैसे क्या होगा, सिविल वॉर की नौबत ही नहीं आई। आ गई बात समझ में? तीनों के स्टेटमेंट्स अलग अलग हो गए, अलग अलग पावर शेयरिंग हो गई। एक क्या कहता है कि सेंट्रल लेवल पे मेरे पास ऐसा होना चाहिए, स्टेट कहता है कि मैं इस लेवल पे ये काम करूंगा, सबऑर्डिनेट्स वगैरह बना दूंगा। आ रही बात समझ में? और कम्युनिटी क्या कहता है कि इलेक्शंस करवा देंगे डायरेक्टली, उनका लीडर बना देंगे दोनों ग्रुप का,
और दोनों अपनी अपनी कम्युनिटी को होल्ड करें। क्लियर क्लास 10? एनी डाउट टिल नाउ? बच्चा इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. एनी डाउट आस्क मी. क्लियर? द डाइवर्जेंट पाथ ऑफ द डेमोक्रेटिक डिजाइन. एक बार हम इनका डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं कि क्या डिफ्रेंसिएशन है. यस राजवीर? बेटा फिर तो वो सिविल वॉर ही होगा. हाँ हाँ, सिविल वॉर हो सकता है. कोई डिस्ट्रस्ट पैदा, जहां पे डिस्ट्रस्ट होगा वहां सिविल वॉर होगा ही होगा, चाहे वो विद इन कम्युनिटी हो. हमने टू टर्म्स पढ़ी थी, रिमेंबर, इंटर कम्युनिटी और इंट्रा कम्युनिटी. इंटर मतलब विद इन ए कम्युनिटी और इंट्रा हो गई दो कम्युनिटी के बीच में वॉर. तो इट कुड बी पॉसिबल, इट कुड बी पॉसिबल. तो इट मे बी रादर हैंडल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट. क्लियर? दोनों के होंगे, गवर्नमेंट, कल्चर, एजुकेशन एंड लिंग्विस्टिक. अलग अलग लेंगे, अलग अलग लेंगे तो दोनों रेगुलेट कर पाए. तो एक दूसरे को आप सेटिस्फाई कैसे करो? चलिए डिफरेंस देख लें एक बार जल्दी से. फर्स्ट, श्रीलंकन में किस चीज को लेके हुआ था? मेजोरिटी उसको लिया था. मेजोरिटी रूल्स विदाउट माइनॉरिटी कंसिडरेशन. उनको माइनॉरिटी से कोई लेना देना ही नहीं था. मेजोरिटी मतलब विन विन पोजीशन हो गई. अब हमारी पावर्स चले. क्लियर? यहाँ पे अकोमोडेशन को लेके हुआ था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, यूनिटी नहीं थी, एक्सेप्टेबल नहीं था, डिस्ट्रस्ट था. क्लियर? सेकेंड आ गया लैंग्वेज को लेके, यहाँ पे मोनोपोली थी कि हमें सिन्हालास को एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दो. यहाँ पर क्या था? इक्वल रिप्रेजेंटेशन था लेकिन बायलिंगुअल कैपिटल थी. बायलिंगुअल कैपिटल मतलब डच का अलग और फ्रेंच का अलग. गवर्नमेंट स्ट्रक्चर क्या था? यहाँ पे यूनिटरी थी, मतलब एक सरकार ही चाहिए थी. यहाँ पे जैसे हमने भी बेल्जियम में देखा कि सेंट्रल भी आ गई, स्टेट भी आ गई, कम्युनिटी भी आ गई. श्रीलंकन में ऐसा नहीं था कि भैया मेजोरिटी है, जीत गए अब हम ही रूल करेंगे. लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं था. फेडरलिज्म था यहाँ पे, थ्री टायर स्ट्रक्चर था जहाँ पे सेंट्रल भी हो गया, स्टेट भी हो गया एंड कम्युनिटी भी हो गया. क्लियर? अल्टीमेट आउटकम क्या हुआ? श्रीलंका में क्या हो गया? सिविल वॉर स्टार्ट हो गया. और यहाँ पे क्या हुआ? बेल्जियम में क्या हुआ? सिविक पीस. ब्रुसेल चूज एज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन. एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट चुना गया ब्रुसेल्स के अंदर, जहाँ पे किसकी मांग करी? शांति की मांग करी कि आपस में ऐसी कंडीशन पैदा ना हो कि लोग रोड पे उतर रहे हैं लड़ने के लिए. सिविक पीस चाहिए. सिविक पीस मतलब सिविल वॉर नहीं चाहिए, सिविक पीस चाहिए, शांति चाहिए. शैल वी मूव? ड्यूअल इंपैरेटिव ऑफ द शेयरिंग पावर. अब क्या होगा? एक डेमोक्रेसी जब सेट डाउन हो गई है तो वो क्या चाहेगा कि अपनी पावर को मैं कैसे क्या करूं, एक्सक्यूज मी, कि मैं अपनी पावर को कैसे शेयर करूं. एक था प्रुडेंशियल, एक था मॉरल. एक क्या था? प्रुडेंशियल, एक था मॉरल. प्रुडेंशियल क्या था? दैट इज द कैलकुलेशन. अगर हम हमारी टर्म में बात करें तो कैलकुलेशन. अब मैम किस चीज की कैलकुलेशन हो रही है? क्या मैथ्स आ गई? नहीं. पढ़ते हैं. reduce the possibility of the violent conflict between social groups. Imposing the will of the majority may seem efficient in the short run, but tyranny of the majority ultimately ruins the majority itself. Power sharing is the ultimate risk management tool. जब ज्यादा मेजोरिटी हो जाती है तो लोगों में आपस में डिस्ट्रस्ट पैदा होता है. अपनी पावर को लेके क्या होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं. अब मैडम मेजोरिटी में भी कॉन्फ्लिक्ट करवा रहे हो, जैसे अभी राजवीर ने बात कही थी कि मैम विद इन अ कम्युनिटी अगर लड़ाई हो जाए तो वही बात हो रही है कि विद इन अ मेजोरिटी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं. तो वहां पे पावर शेयरिंग कैसे होगी? वहां पर पावर शेयरिंग कैसे होगी जब पूरी पावर मेजोरिटी के हाथ में है?
आई बात समझ में या डाउटफुल है अभी? नहीं आया समझ में? एक बार दोबारा पढ़ो. Prudential reduces the possibility of violent conflict between social groups. Imposing the will of the majority may seem efficient in the short run, but tyranny of the majority, tyranny का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रेस पैदा होना, एक कहते हैं ना कि अविश्वास पैदा हो जाना. जैसे हमारे सेक्युलरिज्म को लेके एक जब बात आई थी स्टेट एंड रिलीजन में, हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया था. जब लास्ट में एक लाइन आई थी कि स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजन, कि स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर कर सकता है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक डिस्ट्रेस पैदा हो रहा है कि मेजॉरिटी के जो लोग हैं वो अपनी पावर को लिमिट में यूज में नहीं लेते, बल्कि वो पावर अनलिमिटेड हो जाती है, उस पावर की लिमिटेशंस बन जाती है. जब पावर्स में लिमिटेशंस आ जाती है, वो कौन सी वाली लिमिटेशन? बाउंड्री वाली नहीं, उस बाउंड्री को भी क्रॉस कर दिया लिमिट्स में, तो लोगों में क्या पैदा हो जाएगा? एक डिस्ट्रेस पैदा हो जाएगा कि वेयर वी आर स्टैंडिंग, हम क्या कर रहे हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है. आगे बस समझना, इसको पढ़ते हैं. तो अगर हम कहें यहाँ पे कि एक पावर शेयर करना भी एक रिस्क वाला मैनेजमेंट है. कैसे करोगे, किसको करोगे? और सबसे पहली बात कि जब पूरा ग्रुप ही मेजॉरिटी में है तो पावर शेयरिंग करोगे किसको? भाई पावर शेयरिंग या तो हॉरिजॉन्टली होगी या फिर वर्टिकली होगी. सारे पावर वाले हैं, डिस्ट्रेस पैदा होगा, बिल्कुल होगा. इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं, बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जब पावर शेयरिंग होती है तो क्या होता है. ठीक है. दूसरा है मॉरल स्पिरिट. कहते हैं ना देशभक्ति की भावना होनी चाहिए. जिसमें देशभक्ति की भावना है वही अपनी देश के लिए जाके बॉर्डर पे लड़ सकता है. हर कोई सोल्जर नहीं बन सकता, हर कोई सोल्जर नहीं बन सकता. द वेरी एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी, legitimate government requires that citizens who are affected by the exercise of power require a direct stake in the system through the participation. जो डायरेक्टली इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर, तो सिटीजन्स में क्या होगा? एक फेथ डेवलप हो जाता है कि नहीं, आज हमने एक लीडर चुना, एक रूलिंग पार्टी है, अब हम हमारे रूल लीडर के ऊपर क्या करते हैं? पूरा फेथ रखते हैं कि ये हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे. आगे बात समझ में? भाई हर किसी में लीडर बनने की स्पिरिट नहीं होती है. तो यहाँ पे मॉरल क्या है कि एक लीडरशिप की जो क्वालिटी है, स्पिरिट जो है, वो हर किसी में नहीं होती है. अगर किसी में होती है तो पूरे सिटीजन का जो ट्रस्ट होता है वो उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है कि ये हमारा लीडर है, ये हमारा नेता है, अगर ये हमारे लिए करेगा तो कुछ अच्छा ही करेगा. तो पूरी डेमोक्रेसी क्यों उसी के ऊपर डिपेंड है. पूरी डेमोक्रेसी वही चलाने वाले, वही हमारी पूरी सरकार चलाने वाले, गवर्नमेंट को रूल ओवर करने वाले. आखिरी बात समझ में क्लियर है? For today's it's enough. I think it's very vast topic. So we will continue this topic tomorrow also. Okay. So I'm going to give you some questions which you have to give me the answer in the comment box. Okay. Write down the questions. Some important MCQs. Okay. First, when did Sri Lanka got freedom? Next question.
Official language of Sri Lanka. Dutch speaking region in Belgium. Fourth one, write two demands. Class, what happened? Write two demands. Two demands of whom? Sinhalas. Which type of government running in Belgium? Class 10, give these answers in the comment box positively today. I want all response. Okay. Today we will discuss these questions. Then we will continue it. Got it? So class 10, till then bye. We will meet tomorrow. We will continue this chapter.